Hello and welcome everyone to my YouTube channel. I am Rahul Mahato, working as an assistant professor in the Department of Commerce of Kalipadu Ghosh Tarai Mahavidyalaya in the Darjeeling district of West Bengal. In this lecture, we will discuss about Limited Liability Partnership Act 2008. It is a very new concept in the form of business organization. Let's see what are those things that we are going to discuss. So, what is LLP? As the definition says, LLP is such a form of organization that have limited liability just like company and flexible rules just like partnership. तो देखिए LLP जो था उसकी अगर हम देखें तो जरूरत क्यों पड़ी बिकॉज वी हैड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव पार्टनरशिप वी हैव कंपनी वी हैव सिंगल प्रोप्राइटरशिप एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन HUF एंड एक्सेट्रा. तो हुआ ये कि देखिए अगर कंपनी है तो कंपनी में वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजेस फीचर दैट अ पर्सन कैन गेट इज दैट देयर द मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी and their liability is limited up to the shares they hold or the contribution they have in the company. But the major drawbacks in starting a company is that you have to adhere with lots and lots of rules and regulations. So it becomes very difficult for any individual or a member of the owner of the company to adhere with such rules and regulations. On the other hand, we have a partnership firm where the liability of the partners are unlimited. So it is the drawback of partnership. Why? One partner is responsible for the actions of other partners. भले ही आपका दूसरा पार्टनर जो है वो गलती करके आया आपने कुछ गलती नहीं किया उसके गलती की वजह से आपके पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो रहा है देन ऑल्सो यू हैव टू बियर द लॉसेस. But one of the most advantageous features that we can get in partnership is that there is no such restricted rules. There are no such rules and guidelines as we can see in company law. Because partnership act is different and company or firms are governed with company law 2013. तो यहाँ पे क्या हुआ अगर एक बंदा अगर कोई आपको आके बोलता है कि ठीक है मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उससे पूछेंगे कि आपको किस टाइप का बिजनेस चाहिए आपको क्या फीचर्स चाहिए वो बोलता है कि ठीक है मेरे को लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए. तो आप उसको क्या बोलोगे कि ठीक है चलो आप कंपनी खोल लो. फिर वो आपको बोलता है कि यार मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशन से दिक्कत होती है तो आप उसको बोलोगे कि अरे ऐसा है तो फिर पार्टनरशिप ले लो. तो बोलेगा पार्टनरशिप में लायबिलिटी फिर लिमिटेड मिलेगा तो आप बोलेंगे नहीं वहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो वी कैन फील द नीड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन इन बिटवीन दीज टू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमें एक नीड आया कि ओके क्यों ना हम ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करें जहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी जस्ट लाइक कंपनी और फ्लेक्सिबल रूल्स जस्ट लाइक पार्टनरशिप हो. तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ LLP मार्केट में आया दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी partnership in which we have cut out all the disadvantages of company and partnership and we have joined the features of company and partnership that are advantages that is limited liability just like company and flexible rules just like partnership. Therefore we can say that LLP is a hybrid form of organization because it is formed by mixing the advantages of company and partnership. So I hope everyone is clear with the definition. LLP क्या है? LLP कुछ नहीं है बस एक कंपनी और पार्टनरशिप का आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर मिक्स है जिसमें हम एडवांटेजेस पॉइंट को लिए. नाउ फीचर्स ऑफ LLP. अभी तक हमने देखा कि ओके व्हाट इज LLP. सो वंस यू हैव अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ LLP यू कैन इजीली चॉक आउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ LLP. जैसे कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि LLP is a form of organization in which we have limited liability just like company. So one of the basic feature that we can say of LLP is that in LLP we have limited liability. Partners are only liable for their own acts. They are not liable for others act, other partners act. अगर कल को कुछ दिक्कत होती है बिजनेस लॉस में जाता है तो वहां पे पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को सेल नहीं किया जाएगा. But in case of partnership, what will happen? Partners are liable and the personal assets are also liable.
Why? Because in partnership, the partners have unlimited liability, but in LLP, the partners have limited liability just like company. Now, the second is flexible rules. In LLP, the rules and regulations are flexible. Partners mutually agree upon a certain condition and they frame out their agreement. Okay, these and these are the consideration that will happen, or these are the factors that will be considered while we make any changes in the partnership. So every rules and regulations are made with the mutual consent or mutual understanding of the partners on. और कुछ भी रख सकते हैं until and unless वो unlawful है, आप कुछ भी रखिए. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटी अपने एग्रीमेंट में कर लेंगे, तो वो तो अगर आप किए तो आपका बिजनेस ही इलीगल होगा. नाउ द थर्ड इज नो म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन पार्टनरशिप. म्यूचुअल एजेंसी मींस one partner is liable for other partners actions. Mutual agency is the true test of partnership, but in LLP partners are not liable for other partners action. Therefore we can say that there is no mutual agency in LLP. The next is the minimum number of partners that is required to form a LLP is 2, and there is no limit on maximum number of partners. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपके पास लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर पे, तो आप अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते. यू कैन bring as many as partners you require. So these are the features of LLP. The number one is limited liability, flexible rules, no mutual agency, minimum 2 partners are required to form a LLP, and there is no limit on maximum number of partners. Now, the next section, that is section 5, it provides the guidelines when a person is disqualified from being a partner. कब एक person जो है LLP में partner नहीं बन सकता है. So there are basically 3 conditions when a person is disqualified from being a partner. Number one is if a person is of unsound mind. His mental condition is not normal. अगर किसी बंदे का mental condition ठीक नहीं है, then he cannot be a partner in LLP. The second is he is an undischarged insolvent. That means he has not paid or not cleared the amount of any creditors. Then also he is not able to be a partner. And the third one is he himself has applied for being adjudged as insolvent. That means उसने खुद कोर्ट में जाके कहा है कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो. अगर वो खुद ऐसा करता है, in that case also he is not qualified to be a partner in LLP. Now the question arises कि कोई खुद जाके क्यों कहेगा कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो. See, there are certain cases जब क्या होता है कि आपका लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड है और बिजनेस लॉस कर चुका है, वाइंड अप के कगार पे है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके जो क्रेडिटर्स है वो आके आपसे पैसे मांगने स्टार्ट करते हैं. सो वहाँ पे एक मेंटल प्रेशर होता है, बहुत कोएसिव एक्शंस होते हैं. तो इस केस में क्या होता है, मेंटल प्रेशर से बचने के लिए जो पर्सन है वो खुद कोर्ट में जाकर कहता है कि ओके आई एम इंसॉल्वेंट एंड डिक्लेयर मी एज एन इंसॉल्वेंट. ही हिमसेल्फ हैज अप्लाइड, वो खुद अप्लाई कर देता है कोर्ट के सामने कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर. तो अगर ऐसा किसी ने करके रखा है, सो then in that case he is not able to be a partner in LLP. So I hope it is clear. We have basically 3 points when a person is not able to be a partner in LLP. That is, if he is of unsound mind, if he is an undischarged insolvent, or he himself has applied for being adjudged as insolvent. Now, the next section, that is section 6, it describes or it states the minimum number of partners. See, we have already discussed that at least 2 partners are required to open an LLP, and there is no limit on maximum number of partners. So पहला 2 पॉइंट हम वही बोल रहे हैं. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है. Now, one thing is to be noted that if any time in LLP the partner or the number of partners has been reduced to less than 2 and the business is carried for more than 6 months, and it is in the knowledge of the partner that okay, in my LLP
I am only the partner, or there are less than two partners, and I am still carrying on the business for more than 6 months, then in such cases, the benefit that you were enjoying, that you have limited liability, that holds to be seized, and your liability becomes अनलिमिटेड. कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में नंबर ऑफ पार्टनर्स दो से कम हो जाते हैं, और ये पार्टनर को पता है कि मेरे बिजनेस में पार्टनर जो है दो से कम हो चुके हैं, एंड स्टिल ही हैज carried on his business for more than 6 months. So in such cases, what will happen? The partner will be personally liable for the obligation of LLP. Now, Section 7. Section 7 deals with designated partner. What is designated partners? जैसे कंपनी में क्या होता था, कंपनी में कोई भी डिसीजन जो था वो कौन लेता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सारे राइट्स थे कि अच्छा वो जो है सारे डिसीजन को ले सकते हैं. Similarly, in LLP, decision making rights have been granted to designated partners. Now, who are designated partners? Designated partners जो होते हैं वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्हीं में से चूज किया जाता है. जैसे हम क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर्स है उसी में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को चूज करते हैं. Similarly, in LLP, what we do, we choose designated partners from our existing partners. So, Section 7 says that in LLP there should be at least two designated partners. Designated partner कम से कम दो होने चाहिए. Now, जो दो पार्टनर होंगे वो इंडिविजुअल ही होना चाहिए. सपोज दो कंपनी पहले थे, उन्होंने क्या किया कि एक नया बिजनेस फॉर्म किया, दैट इज LLP में वो अब आ गए. So they are body corporate. In that case, what happens? There is no individual. Individual के साथ कोई agreement नहीं है. कंपनी का agreement था कि okay, two body corporate is going to form an LLP. Now, in such cases, what will happen? The company will have to appoint a legal representative for itself, and he will do what? He will be acting as a designated partner. So, हमारा जो इंडिविजुअल होना चाहिए कंडीशन वो फुलफिल हो जाता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट कि कम से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम कैसे उसको पता करेंगे? In the previous year, his stay in India should be at least for 182 days. Then only we can say that he is resident of India. So I hope it is clear what is designated partner. Designated partners are the partners who have right in decision making purposes. Management के affairs में वो part लेते हैं, decision make करते हैं. Okay? And they should be individual, and at least one of them should be resident of India. Now, when a person is disqualified, or when a partner is disqualified to be a designated partner, इसमें भी 3 पॉइंट है. देखिए, पहला है declared to be insolvent in last 5 years. If a partner has been declared insolvent in last 5 years, then he is disqualified to be a designated partner. कहने का मतलब है कि अगर पिछले 5 साल में अगर कभी भी, से फॉर एग्जांपल 2 साल पहले वो ये पार्टनर था, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ था, अभी वो सॉल्वेंट है, in that case also he is not qualified to be a designated partner. Why? Because in the last 5 years he has been declared as an insolvent. Second is he has compromised with creditor in last 5 years. क्रेडिटर के साथ वो कॉम्प्रोमाइज किया है, उसने पूरे पैसे दिए नहीं है पिछले 5 साल में किसी के क्रेडिटर. Now the third is court has found him guilty of moral turpitude and has been jailed for at least 6 months. कहने का मतलब है कि फॉर एनी मोरल टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर. उसके कैरेक्टर, कोई कैरेक्टरलेस काम किया जिसके लिए कोर्ट ने उसको गिल्टी फाइंड किया एंड ही हैज बीन जेल्ड फॉर 6 मंथ्स. इन दैट केस आल्सो ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. नाउ सेक्शन 8. सेक्शन 8 डील्स विद लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर. सी, एलएलपी में जो भी काम करना होगा वो कौन करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर. सो व्हाटएवर द
the activities are required to be done in LLP, like filing of documents, getting its accounts audited, each and everything, वो सारा काम किसका होगा? Designated partners का होगा, and he is the responsible for doing such activities. The second thing is, अगर LLP पे फाइन इम्पोज होता है तो वो फाइन को जाके भरना, हर चीज करना। LLP का एक तरह से वो क्या है? अंडरसाइंड सिग्नेटरी है जो सारा काम करता है, designated partner. Therefore, the liabilities of designated partner can be categorized into these 2 points. Now, the next section, that is section 9, it deals with vacancy. जैसे पार्टनर में क्या था? पार्टनर में अगर 2 से कम पार्टनर हो जा रहे थे और आप 6 महीने से ज्यादा अपने बिजनेस को कंटिन्यू किए हैं, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? योर लिमिटेड लायबिलिटी फीचर विल बी converted into unlimited liability. Now, in case of designated partner, if at any point of time there is less than 2 designated partner, अगर किसी भी point of time में 2 designated partner दो से कम designated partner हो जाते हैं आपके LLP में, then you have to appoint designated partner within 30 days and make it up to at least 2. मतलब कम से कम 2 बना देना है 30 दिन के अंदर, अगर कभी कम हो गया है तो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, then all the partners will be deemed to be designated partner and they will be liable for all acts. कहने का मतलब वही है, अगर 30 डेज के अंदर आप कंप्लाई नहीं करते हैं और 2 designated partner फुलफिल नहीं करते हैं, तो क्या होगा? बाकी जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो deemed to be designated partner हो जाए, उनको designated partner मान लिया जाएगा and their liabilities will be unlimited. Now, अब देखते हैं कि आप LLP को रजिस्टर कैसे करें. How you are going to register an LLP? See here, first and foremost thing is you have to apply for name. आप अपने बिजनेस का नाम क्या रखना है LLP. So apply for reservation of name to registrar of LLP. यहाँ पे आप किसको एप्लीकेशन देंगे? रजिस्ट्रार ऑफ LLP. और जो फॉर्म होता है इसके लिए वो फॉर्म नंबर 1 है, along with a fee of ₹200. 200 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए. एंड the point that has to be considered here is that the name should be available and should be desirable. जैसे कि आप कभी भी अपना एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जीमेल अकाउंट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि यूजर आईडी यूजर नेम क्रिएट करना होता है. तो वहाँ पे आप यूजर नेम टाइप करते हो, अगर वो अवेलेबल है तो गूगल आपको बता देता है कि ओके दिस यूजर नेम इज अवेलेबल, यू कैन टेक दिस एज योर यूजर नेम. अगर अवेलेबल नहीं है तो वो बोलता है कि दिस इज नॉट अवेलेबल, ट्राई अनदर यूजर. Similarly, if you are going to register your LLP, first of all you have to apply for reservation of name and that name should be available. ऐसा नहीं कि उस नाम से कोई और एक LLP चल रहा है तो वो नाम आपको नहीं मिल सकता. And it should be desirable. Undesirable नहीं होना चाहिए. The fee that you will pay is ₹200. So you have applied for the reservation of name. Now the second thing is incorporation documents. What are the documents that you will submit to the registrar for getting the incorporation certificates that are listed in section 11? So basically इसमें 4 होते हैं. पहला आता है कि proposed business of LLP. आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आप क्या बिजनेस करने वाले हैं. सेकेंड इज एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP. आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा LLP का वो कहाँ होगा, उसका एड्रेस. थर्ड इज नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर्स. सारे पार्टनर्स का नाम और पता आपको दिखाना होगा. एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. सो what are the documents for incorporation you are required? You are basically going to submit 4 documents, that is proposed business of LLP, address of registered office of LLP, name and address of each partner, name and address of designated partners. Now, after submitting all the documents to the registrar, आपने सारे documents registrar को submit कर दिए. registrar क्या करेगा? उसके बाद within 14 days आपको incorporation certificate हाथ में दे देगा. जैसे इंडिविजुअल्स का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वैसे ही किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है. तो जैसे ही आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएंगे आपका. वंस
जो LLP gets the incorporation certificate, that means it has been created in the eyes of law. It has got its separate legal entity. Okay. Now, section 13, it deals with रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा एलएलपी का, एंड अगर कभी आपको वो एड्रेस चेंज करना है रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो वो सारी बातें सेक्शन 13 में लिखी हुई है। तो क्या कहता है सेक्शन 13, कहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा वो क्या होगा, वो एक ऐसा एड्रेस होगा जहाँ पे सारे कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस जो है वो सेंड किए जाएंगे, रिसीव किए जाएंगे। हो सकता है ना आपका बिजनेस का ब्रांच बहुत सारे जगह हो, बट देयर इज अ सिंगल रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन आर सेंट टू ईच एंड एवरी ब्रांचेस। और कभी गवर्नमेंट या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मैसेज या फिर कुछ नोटिस भेजना है, तो वो कंपनी के कहाँ भेजते हैं, बिजनेस के रजिस्टर्ड ऑफिस में। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, अगर कभी आपको लगता है कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो एलएलपी का उसको चेंज करना चाहते हैं, then you can do so by filling the form number 15. फॉर्म 15 आता है रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस को चेंज करने के लिए, and you have to follow all the procedures that you have listed in LLP agreement. आपने एक LLP agreement बना के रखा होगा जिसमें आपने बोला होगा कि ठीक है, अगर कभी हमें रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करना है तो हम ये सारे प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि अगर मेजोरिटी नंबर ऑफ पार्टनर्स मान जाए तो हम रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर दें, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर बोले कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। सो whatever guidelines you have stated in your agreement, by following those guidelines you have to provide a notice to the registrar of LLP that you are going to change your registered office along with form number 15। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि आपने एग्रीमेंट नहीं बना के रखा है या फिर आपके LLP एग्रीमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, then in that case what will happen, you will have to take the consent of all partners। सारे पार्टनर्स राजी होने चाहिए उस एड्रेस को चेंज करने के लिए, then only you can change the address of your registered office। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो, then in that case along with all the guidelines that we have already discussed above, you will have to also take the consent of your secured creditor। आपके जो secured creditors है, जैसे आपने बैंक से लोन लेके रखा था, आपको बैंक से भी कंसेंट लेना पड़ेगा अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं। अगर सेम स्टेट में तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का कोई भी कंसेंट नहीं चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इफ एनी प्रोविजंस दैट इज लिस्टेड इन सेक्शन 13 आर वायलेटेड, अगर आपने एड्रेस चेंज करने में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जो स्टेटेड था सेक्शन 13 में, देन एवरी पार्टनर इज पनिशेबल। Partners punishable with a fine not less than 2000 rupees that can be extended up to 25,000। मतलब कम से कम 2000 से 25,000 रुपए तक का आपका जुर्माना लग सकता है अगर आपने सेक्शन 13 के कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया तो। So registered office of LLP and change their name। I hope it is very much clear। Now section 23, section 23 deals with relationships of partners। What are the relationship of partners or duties of partners, rights of the partners? सी, आपका जो LLP का एग्रीमेंट होगा उसमें सारे पार्टनर्स का राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज मेंशन होंगे। इफ LLP एग्रीमेंट नहीं है, जैसे पार्टनरशिप होता था ना कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हो जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा एटसेट्रा, हमने ऐसे देखे थे। वैसे ही यहाँ पे सर्टेन प्रोविजंस हैं, अगर LLP एग्रीमेंट आपके पास नहीं है, सो व्हाट आर द प्रोविजन दैट विल अप्लाई। So, in the absence of LLP agreement, profit sharing and capital contribution ratio should be equal। Okay, and LLP shall indemnify all partners in respect of payment made and personal liability incurred by him
इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एलएलपी बाय हिम। अगर एग्रीमेंट नहीं है और पार्टनर्स ने कुछ भी काम किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस and he has incurred some liability, then in such cases LLP is liable to pay the partner। अगर पार्टनर ने कोई पैसा पे कर दिया है in the ordinary course of business के लिए, then LLP is liable to pay such amount to the partners। इसलिए कहा गया कि LLP shall indemnify all partners। Now the third is every partner shall indemnify LLP for loss because of fraud। देखो LLP में एक चीज, आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी है लेकिन कहीं भी आपके गलती की वजह से या आपने फ्रॉड कर दिया तो आपका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। सो वही यहाँ पे बोल रहा है, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है तो एलएलपी को उसको उस पार्टनर को एलएलपी को भरपाई करना होगा उस लॉस को। Now fourth is every partner has right to participate in management of LLP। So अगर एग्रीमेंट है उसमें बोला गया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास ही राइट है मैनेजमेंट में पार्ट करने का, पार्टिसिपेट करने का, सो इट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है एलएलपी का, इन दैट केस एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द एलएलपी। द नेक्स्ट इज नो रेम्यूनरेशन shall be provided to the partner। पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन सैलरी कुछ नहीं मिलेगा अगर एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है या फिर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो। सिक्स्थ इज नो रेम्यूनरेशन नो एडमिशन। सीधी सी बात है, कोई भी आप पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर आपको एडमिशन देना है पार्टनर को, एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो सीधी सी बात है नया पार्टनर जो भी एडमिट होगा उस एलएलपी में वो बाकी सारे पार्टनर के कंसेंट से होना चाहिए। उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है या फिर कोई भी इशू अराइज हो रहा है तो उसका जो आउटकम होगा या फिर जो कंसिक्वेंस होगा वो डिसाइड कैसे होगा, वोटिंग से होगा। और वोटिंग क्या होगा, ईच पार्टनर को 1 वोट का राइट मिला होगा और जिस साइड मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर वोट करेंगे वही डिसीजन लिया जाएगा। दैट इज the decision will be taken by the resolution passed by majority of partners and each partner shall have 1 voting right in absence of any agreement। Now the 8th point is no change in the nature of business without the consent of all partners। देखो कोई भी मैटर हो गया या फिर कोई भी इशू है, किसी कोई डिसीजन लेना है तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर का आपको वोट चाहिए। मतलब अगर 4 पार्टनर हैं तो कम से कम 3 पार्टनर फेवर में है तो आप फेवर में डिसीजन लेंगे, 3 अगर फेवर में नहीं है तो फेवर में डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना, जैसे पहले आप जो थे स्टील के बिजनेस में थे अब आयरन के बिजनेस में जा रहे हैं, सो यू आर चेंजिंग योर नेचर ऑफ बिजनेस, देन इन दैट केस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर विल रिक्वायर। वहां पे आप नहीं बोल सकते कि 4 पार्टनर है 3 ने हाँ बोल दिया तो कर दो, नहीं, उस केस में आपको सारे पार्टनर का कंसेंट लेना होगा। द लास्ट थिंग इज कोई भी डिसीजन एलएलपी में लिया जा रहा है उसको मिनट्स में रिकॉर्ड करना होगा विद इन 30 डेज। जैसे कंपनी लॉ में था ना, कुछ डिसीजन हम लेते थे बीओडी में तो वो मिनट्स में रिकॉर्ड होता था, वैसे ही एलएलपी में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो विद इन 30 डेज मिनट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। नाउ सी सेक्शन 27 इट डील्स विद लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। एलएलपी का क्या लायबिलिटी है? फर्स्ट इज एलएलपी विल bear the liabilities of partner created during ordinary course of business within its authority। कहने का मतलब है अगर पार्टनर अपने अथॉरिटी में उसको जो राइट्स दिया गया है विद इन दैट राइट्स एंड अथॉरिटी इफ ही हैज कंडक्टेड एनी एक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल सिनारियो में बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस के काम के लिए अगर उसने कोई डिसीजन लिया है या कोई भी काम किया विद इन हिज अथॉरिटी, देन अगर कोई लॉस होता है या लायबिलिटी इनकर होती है तो एलएलपी बियर करेगा। व्हाई? बिकॉज पार्टनर हैज डन दैट एक्शन सो दैट द बिजनेस विल रन। उसमें उसका कोई भी वेस्टेड ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि नहीं मुझे बिजनेस का लॉस ही करवाना। अगर ऐसा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट पता चलता है तो एलएलपी विल नॉट बियर सच लॉस until and unless everything is fine, motive is clear, then LLP will bear the liabilities of partner in the ordinary course of business। ठीक है। Now see, अगर एक पार्टनर ऑथोराइज्ड नहीं है किसी भी काम के लिए,
और सामने वाला बंदा जान रहा है कि ये पार्टनर ऑथराइज नहीं है। जैसे कि ए एलएलपी का एक पार्टनर है, से फॉर एग्जांपल राम एलएलपी का पार्टनर है, वो जाता है वेंडर के पास, उसको कहता है कि हमें 300 कुंटल गेहूं चाहिए, और वो जो वेंडर है वो जानता है कि राम के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो आके गेहूं परचेज कर सके अपनी कंपनी के, बट देन ऑल्सो वो उसको सेल कर देता है क्रेडिट। थर्ड डे अगर वो जाके एलएलपी या फिर केस फाइल करता है एलएलपी के खिलाफ कि इस बिजनेस ने मेरे से 300 कुंटल गेहूं लेके गया और अभी तक पैसे पे नहीं किए, तो उस केस में क्या होगा, एलएलपी पर्सनली लायबल नहीं होगा लेकिन पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज दैट पार्टनर्स डिडंट हैड एनी authority to do so, and the person who was vendor, he was well knowing that he or she doesn't have any authority, but then also he has entered into contract and he has sold his 300 quintals of wheat to that person. In that case LLP will be not liable. Okay, now the last is the liability of LLP shall be made out of the property of LLP. तो सीधी सी बात, अगर LLP का कोई liability है, see LLP and its partner are two separate legal entity, partners का liability limited है, बट अगर कोई business का liability है तो वो business की property से मेट आउट किया जा सकता है। So thank you everyone, here we end with our lecture on limited liability partnership. I hope you have liked the lectures. For more lectures on commerce and economics topic, you can visit my YouTube channel with the name Professor Rahul Mahato, and the link for that channel has been given below. Thank you.